guys, what's up? Welcome back to a brand new video. So it's Friday today, which means 3 days to go for my physics board exam. My physics board exam is on Monday, and I hope it'll go well because I am preparing for it nicely. So basically today's plan is to study optics. मैंने कल ray optics पूरा complete कर लिया था, and I gave so much of time to that chapter because it's really important. And आगे की जितने भी chapters है उसका base उसमें से आता है, and major derivations जो हमारे second part of book में है वो इसी chapter से आते हैं. तो that's why I try to focus more on that chapter. The whole day yesterday मैंने सारे derivations practice किए, मैंने पूरा theory किया, सब कुछ अच्छे से हो गया और मेरा आधा wave optics भी हो चुका है. तो आज मुझे wave optics complete करना है किसी भी हाल में, and आगे के भी थोड़े बहुत chapters I'm planning to do. Let's see how many chapters we are able to complete today, and I'll surely keep you guys updated. For now, first let us go. I'll take a quick shower and we'll meet you guys in some time once we start studying again. It is currently 11:47, starting the vlog really late because there was some work which we were getting done. So yeah, let's get started with the day, and I'll meet you guys once I'm done with the shower. Hi there, so I'm currently downstairs for walking and we have successfully completed the target for the day. So I am done with my book number 2, which is a big task which I have completed and I'm honestly proud of it. But the thing is कि मेरे लिए ray optics is like the optical part is better than the electrostat part, and that is what is left. So I need to complete the electrostats. I'll do that tomorrow, but today I'll just now walk for some time. मैंने theoretical part पूरा कर लिया है, मैंने उसके derivations भी कर लिए. derivations इतने ज़्यादा है नहीं उसमें, तो वो हो चुका है. तो अभी हम घर जाके PYQs करेंगे, मतलब जितने भी है, तो उससे we'll get an idea of the kind of questions that are asked. And first look at the sky. It is just so beautiful today, and I guess it will rain because आज सुबह भी बारिश हुई थी and beauty. Alright, so we have a brand new task. We are now going to the store to get some puri because आज मेरे मम्मी पापा का बर्थडे है. ये बहुत रैंडम था, बट आज somehow मेरे पेरेंट्स का बर्थडे है. एंड इफ़ यू आई मीन मैनी ऑफ योर पेरेंट्स माइट बी एबल टू रिलेट टू इट कि बहुत लोग का बर्थडे आता है 1 मार्च को. एंड इफ़ यू नो वाई, you know what to do, comment down below. But
बेसिकली आज मेरे मम्मी का बर्थडे है और मेरे को कैसे पता चला, मेरे पापा ने हमारे फैमिली ग्रुप पे फ़ोटो डाली कि बर्थडे सेलिब्रेशन इन ऑफिस कैसे करके। तो मैंने उनसे पूछा कि किसका बर्थडे है, तो उन्होंने बोला मेरा बर्थडे है, तो मेरी मम्मी का बर्थडे है। मेरा वाह भाई सही है। 1 मार्च सबका बर्थडे आता है, तो 2 बर्थडेज ऐसे। मेरे डैड का बर्थडे मई में आता है, बट now as he has his birthday today, we are gonna be having a pani puri treat at our house. So मैं जा रही हूँ पूरी लेने. We'll do that and then we'll continue our walking. I'm trying to take it day by day. Sick of passing through the pages on the internet. Am I facing it? Am I really living it? Am I bothered? Maybe just a little. Hi y'all, today is the 4th of March and it's my physics exam today. It currently is 4:20 in the morning, as you guys can see, and I'm awake to revise for my physics exam. So I have kind of done quite a lot of things for the exam, but the thing is that the derivations and the formulas at during the exam, like when I'm sitting there, I tend to jumble every single thing. मैं मतलब literally potential difference का formula मैं किसी और चीज़ में like potential energy में लगा दूँगी and like all that stuff. तो to avoid that I'm awake and I would now revise. तो basically अभी मेरा पहला target है that I revise all the derivations because that comprises of the most important part of our exams. So we'll be doing derivations अभी for I don't know how long, but we gotta do it. So yeah, now let's get started. I just made myself some nice coffee to stay awake. मैंने सोचा था मैं सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, बट अभी एक्चुअली ज़रूरत है। एंड ऊपर से कल ही मेरा HVM का भी पेपर है, तो मुझे आज दिन भर जगना है। एंड आज से मैं अपना कथक क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. आई हैड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम माई कथक बिकॉज आई हैड टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ एंड मेरे एग्जाम्स की वजह से. एंड दैट ब्रेक वॉज 3 months लॉन्ग. इट वॉज द लॉन्गेस्ट ब्रेक आई हैव एवर टेकन इन द पास्ट 10 years. सो आई वॉज रियली मिसिंग इट रियली मच. सो मैंने सोचा मैं मार्च से चालू कर दूँगी. एंड माई क्लासेज आर एवरी मंडे एंड Wednesday I guess. So आज मंडे है तो आज से हम चालू करेंगे. एंड या टुमारो हैव माई HVM, सो आई नीड टू गेट बैक होम एंड स्टडी फॉर दैट. HVM में उतना कुछ है नहीं, बट HVM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ मेजर सब्जेक्ट एंड यू नो द मार्क्स रियली मैटर. बिकॉज अगर मान लो मेरे किसी में अच्छे नहीं आए तो माई HVM मार्क्स विल कंपनसेट फॉर इट इन द परसेंट. सो वी गॉट यू नो डू रियली वेल फॉर इट. एंड HVM का पेपर सिर्फ 30 marks का आता है theoretically. So that's the scene, and now let's get started with studying. I won't waste much of my time and I'll mostly see you guys after I'm done with my exam because अब मैं उतना vlog नहीं करूँगी. I'll study. मैंने इसलिए कल भी मैंने कुछ vlog नहीं किया था. Literally मैं सुबह सुबह उठी थी and then I just started studying. So yeah, see you guys after in the afternoon once I'm done with the exam. Wish me luck and all the best to you guys also for your exam. So see you after some time. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज है अभी का पेपर और मैं आ चुकी हूँ अभी को लेके स्कूल ड्रॉप करने. किस चीज़ का पेपर है बेटा? फिजिक्स का पेपर है. तो कैसी है तैयारी? है तैयारी तो. अभी भी पढ़ाई चल रही है. ये देखो अभी हो रहा है 9:04 इन मॉर्निंग और बस हम वेट कर रहे हैं स्कूल का गेट ओपन हो और अभी को छोड़ के फिर मैं वापस बैक हूँ घर के लिए और बहुत सारे काम है निपटाने. तो फिर वापस मैं आऊँगी इसको लेने 1:30. तो अब बेटू जा चुकी है स्कूल. अभी गेट ओपन नहीं हुआ है लेकिन सारे फ्रेंड्स आ गए थे तो उसको थोड़ी बातें करनी है, थोड़ा देखना है किसकी कैसी तैयारी है. तो इसके लिए वो अभी पहले जा चुके हैं. मैं दिखाती हूँ वो कहाँ है. यहाँ दिख रहा है ये तो यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं उसके फ्रेंड्स. तो मैं वेट करती हूँ थोड़ी देर जब तक गेट ओपन नहीं होता है तब तक
गेट ओपन होगा फिर मैं यहाँ से जाऊँगी. Hi guys, what's up? It's been quite a while and I couldn't really vlog a lot this time because things were terribly hectic. मेरे 2 exams 2 continuous days में थे. I had my physics exam first, then I had my HVM exam as you guys already saw, and obviously I could not really vlog much because दोनों के लिए I had to study. And physics का, okay, let's just give a really honest brutal exam review. So physics, what was it like? If you guys are a 12th grader and a CBSE student, like what exactly was the physics paper? Was it from the NCERT? Was it from anywhere else? I have no clue, but I did try to give my best on that exam because I did study. But at the end मुझे एक तो कुछ फॉर्मूलाज जम्बल अप हो गए. ये मेरे साथ बहुत होता है. मैं मतलब सारे फॉर्मूलाज करके जाती हूँ, but then at the end जब इतनी हरी होती है तो we tend to forget the formulas. Not really forget, like I know the elements in the formula, but then क्या होता है कि एक फॉर्मूला के भी मल्टीपल केसेस होते हैं, तो आई हैव काइंड ऑफ जम्बल्ड अप अ फ्यू केसेस. एंड देन इसमें मैंने आई हैव ट्राई कि मैंने अपने लॉजिक के हिसाब से आई हैव गिवन द आंसर्स. सो बेसिकली इस बार के फिजिक्स पेपर में एवरीथिंग वाज वेरी लॉजिक बेस्ड रादर दैन बुक बेस्ड. सो दैट्स व्हाई मेनी ऑफ अस डिड फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज हमने उस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा तैयारी नहीं की थी. एंड प्लस लाइक इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस PYQ से भी नहीं थे इस बार के एग्जाम में, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग. एंड पीपल आर सेइंग दैट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स फ्रॉम द पास्ट 5 years. आई डोंट नो ये हमारे बैच के साथ क्यों होना था इतना डिफिकल्ट फिजिक्स पेपर, बट देन ओके. एनीवेज आई गॉट सेट 2 एंड आई डोंट नो व्हाट इज अप विद मी गेटिंग सेट 2, बट मुझे लिटरल हर बोर्ड एग्जाम में सेट 2 ही मिल रहा है. सो उसका कुछ कर नहीं सकते. बट या, एंड दैट वॉज माई रियली ऑनेस्ट रिव्यू ऑन माई फिजिक्स पेपर. गो कमेंट डाउन बिलो कि आपका कैसा गया. डोंट गेट disheartened. I know the physics paper did not really go well for many people, but then we cannot really help it, right? It was literally JEE level का physics paper. क्या ही था पता नहीं, बट ठीक है, हो गया अभी वो. एंड देन नेक्स्ट हैड माई HVM पेपर. HVM इज चिल, मतलब बहुत अच्छा पेपर गया. मतलब आई कैन प्रिटी मच एक्सपेक्ट फुल मार्क्स इन इट. अगर थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ हुआ डेफिनेशन में तो हो सकता है 1-2 मार्क चले जाए, बट देन आई एम प्रिटी मच एक्सपेक्टिंग फुल इन दैट. सो आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट मेरा HVM का पेपर अच्छा गया. एंड द थिंग इज कि HVM इज़ अ मेजर सब्जेक्ट. सो इफ़ यू गाइज डोंट नो कि वॉट HVM इज, इट इज़ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, एंड दैट इज़ द 5th सब्जेक्ट विच आई हैव टेकन. जनरली लोग PE या वो सब लेते हैं, लाइक फिजिकल एजुकेशन वगैरह लेते हैं, बट मेरे स्कूल में हैड एन ऑप्शन टू टेक HVM, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड. इफ़ यू गाइस रिमेंबर, मैंने पहले आपको बताया था जब मैं 11th ग्रेड ज्वाइन किया था दैट आई हैड एक्चुअली टेकन IP एज माई 5th सब्जेक्ट विच इज़ इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, बट देन मैंने उसको मिड ईयर में ही मैंने स्विच कर लिया. लाइक आई गेस 2 महीने कुछ हुए होंगे मेरे 11th को, और मैंने स्विच किया बिकॉज आई डिड सी कि IP थोड़ा उसमें टाइम, इट्स नॉट लाइक कि IP इज़ डिफिकल्ट, IP इज़ ऑल्सो वेरी मच डूएबल. मुझे आगे जाके भी CSE करना है तो IP इज़ वेरी मच डूएबल, बट उसमें क्या है कि यू विल हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन इट. एंड लाइक हैविंग PCM एज द सब्जेक्ट्स, आई डिड नॉट रियली वॉन्टेड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन माई 5th सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने HVM लिया. एंड HVM प्लस मेरे लिए और अच्छा इसलिए गया बिकॉज आई एम फ्रॉम अ क्लासिकल बैकग्राउंड. मैं कथक वगैरह करती हूँ, उसकी वजह से मेरे ताल एंड मेरे बेसिक्स आई नो, ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही ब्लैंक हूँ उसके लिए. सो दैट इज़ वाई मैंने HVM लिया. एंड इफ़ यू गाइज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, अगर आपके स्कूल में HVM सब्जेक्ट है, गो फॉर इट, लाइक जस्ट टेक दैट. एक तो उसका प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है एंड उसका थ्योरी सिर्फ 30 मार्क्स का होता है, विच इज़ सो गुड. एंड प्रैक्टिकल में भी एज इट इज़ स्कूल लेवल, दे डू नॉट रियली एक्सपेक्ट अस टू बी तानसेन या एकदम प्रो सिंगर्स, एंड ऑनेस्टली आई एम अ टेरेबल सिंगर. सो बट फिर भी मेरा बहुत अच्छा गया. एंड दैट इज़ माई सजेशन कि अगर आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है HVM, गो फॉर इट. एंड मतलब PE वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा यू हैव टू पुट एफर्ट. उसमें बहुत थ्योरी याद करनी पड़ती है, इतनी सारी डेफिनेशंस होते हैं याद करने के लिए, बट HVM इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी वेरी डूएबल. सो ये था मेरा रिव्यू. एंड इफ़ यू गाइज आर एन अपकमिंग 11th ग्रेडर जो आ रहा है 11th में, यू गाइज कैन प्रीटी मच फॉलो दैट. एंड माई एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग फॉर द पास्ट 2 years. So now talking about the next exam and the final exam. Oh my god, I'm so excited. Like it's my maths exam next. I know I should be scared, but I'm really excited for it. मेरा math exam 9th को है and 9th is my last ever board exam. Oh my god, this is gonna be so good. मेरे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़े दिन लिटरल बस चिल करने वाली हूँ. मैं कुछ नहीं करूँगी कुछ दिन तक, मतलब कुछ भी नहीं. मैं बस बैठी रहूँगी, मैं सोऊंगी, मैं खाऊँगी,
दैट्स ऑल. एंड मेरे को पेंटिंग करनी है. मैं किचन से रुकी हुई हूँ. मेरे पास इतने कैनवसेस हैं, मेरे को पेंट करना है. बट देन ये एग्जाम के चक्कर में हो ही नहीं पाता. तो आई विल गिव लाइक 1 whole entire week just to relax and then paint, do my hobbies, and of course a lot of new YouTube videos. So yeah, this is how my exam वेंट. एंड नेक्स्ट व्लॉग आपको दिखेगा मेरा मैथ्स का एग्जाम, बिकॉज नेक्स्ट वही है, उसके बीच में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे. एंड अभी भी आई वाज स्टडिंग मैथ्स. मैं वो इजी चैप्टर्स पहले निपटा रही हूँ, उसके बाद फिर बाद में गो टू इंटीग्रेशन एंड स्टफ. एंड मैथ्स में मैंने मैक्सिमम चीज़ें एक बार तो कर ही ली है. सो आई एम होपिंग कि फिजिक्स वाला सीन बस ना हो मैथ्स में. मैथ्स के पेपर अच्छे जाए, बिकॉज पास ईयर एनालिसिस के हिसाब से मैथ्स जनरली मॉडरेट होता है, लाइक ईजी एंड मॉडरेट. एंड बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब बहुत ही डुएबल होते हैं. आप NCERT अच्छे से कर लो, एग्जाम्पलर अच्छे से कर लो, PYQs करो, तो उससे इट इज़ वेरी मच डुएबल. तो देखते हैं क्या होता है इस बार मैथ्स के पेपर में. बट yeah, that is how my exams have been going. Make sure to comment down below आपका एग्ज़ाम कैसे जा रहा है, कब है आपका एग्ज़ाम. लाइक many of you might be in state board, तो आपका एग्ज़ाम और लंबा चल रहा होगा. और CBSE also, if you guys are in commerce or humanities, you guys have pretty long exams to go. So all the best for your exams, and yeah, I'll meet you guys in the next video. Till then, stay safe and keep watching. Bye.